Good morning, everybody. On behalf of organizing committee, I, Dr. Karma Bharati, welcome you all. Today we have gathered here from different parts of the state on the occasion of World Rabies Day 2025, which is being organized in the premises of Bamiti, Patna. World Rabies Day is celebrated each September 28 to raise global awareness about rabies prevention and also to honor Louis Pasteur, who developed the rabies vaccine. The 2025 theme for the World Rabies Day is Act Now, You, Me, and Community. Is more than a theme, it is a call to action that will save life. It is a powerful call for shared responsibility and immediate action. To talk on different aspects of the theme, today we have distinguished panels of experts. Before starting, I would like to request Dr. Sunil Thakur sir, Joint Director, Department of Animal Husbandry for welcome speech. Sir, please. विश्व रेबीज दिवस के अवसर पर आयोजित इस कार्यक्रम में हमारे बीच पधारे हुए मुख्य अतिथि डॉक्टर एस सिद्धार्थ विकास आयुक्त बिहार को मैं समस्त पशुपालन परिवार की ओर से स्वागत करता हूं। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रही हमारी अपर मुख्य सचिव मैडम एन विजय लक्ष्मी मैडम का तहे दिल से मैं स्वागत करता हूं। मंचासीन श्री उज्ज्वल सिंह निदेशक पशुपालन को अपने परिवार की ओर से पशुपालन परिवार की ओर से बहुत बहुत स्वागत। तकनीकी सत्र में आए हुए डॉक्टर मनोज कुमार जो विभागाध्यक्ष हैं माइक्रोबायोलॉजी बिहार पशु चिकित्सा महाविद्यालय पटना, उनका भी मैं स्वागत करता हूं। मंच पे उपस्थित रणधीर कुमार सिंह निदेशक पशु स्वास्थ्य एवं उत्पादन संस्थान पटना का भी मैं स्वागत करता हूं। विभिन्न क्षेत्रों से आए हुए हमारे क्षेत्रीय निदेशक महोदय तथा जिलों से आए हुए पशु चिकित्सकगण सभी का मैं इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूं। हमारे बीच मौजूद प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के समस्त पत्रकारगण जिनके प्रयास से इस कार्यक्रम में रेबीज रोकथाम हेतु समस्त जानकारियां पशुपालकों तथा आम नागरिकों तक पहुंचेगी, उनका भी मैं स्वागत करता हूं। Thank you, sir. Ladies and gentlemen, as we commence this auspicious ceremony, it is customary to illuminate the lamp, symbolizing the dispelling of darkness and ushering in of knowledge and progress. So I respectfully invite our chief guest and other distinguished guests to kindly step forward and do the honor of lighting the lamp, making the ceremonial beginning of our event. Sir, please, ma'am, please.
Thank you, ma'am. Plants. Plants are living reminder of perpetual growth, care, and enduring relationship. It carries the message of nurturing and joy of watching something grow with love. So, to our honor our chief guest, Dr. S. Siddharth Sir, Development Commission of Bihar, I would request our respected ACS Madam, Dr. N. Vijayalakshmi, to kindly come and present a plant and a shawl. Sir, Sir, may this plant bring you joy and remind you of our heartfelt thanks. Thank you, ma'am. Thank you, sir. Now, I would like to request Director Animal Husbandry, Sri Ujjwal Kumar Singh, sir, to present a shawl and a plant to Additional Chief Secretary, Animal and Fishery Resources Department, Bihar, Dr. N. Vijayalakshmi, ma'am. And I would also request Dr. Amina. Ma'am, this plant represents our gratitude and the flourishing bond we share. We deeply appreciate your dedication and the wise direction you have provided every step of the way. Thank you for leading by example. Thank you, ma'am. Thank you, sir. Now, I would like to request Dr. Randhir Kumar sir, Director IHP Patna, to present a shawl and a plant to Director Animal Husbandry, Sri Ujjwal Kumar Singh sir, as a symbol of appreciation and hope for continued success. Sir, please. Thank you, sir. Thank you, ma'am. Now I would like to request Dr. Rashmi Bela Kuzur ma'am, Research Officer IAHP Patna, to present a shawl and a plant to Dr. Sunil Kumar Thakur, sir, Joint Director Animal Health, Animal Husbandry Department, as a token of appreciation and respect. Thank you, sir. Thank you, ma'am. Now, I would like to request Dr. Anamika ma'am, Junior Assistant Research Officer, IHP Patna, to present a shawl and a plant to Dr. Arvind Kumar, Joint Director, Animal Husbandry, as a token of appreciation and respect. Thank you, ma'am. Thank you, sir. Now, I would like to request Dr. Preeti Manya ma'am, Research Officer, IHP Patna, to present a shawl and a plant to Dr. Randhir Kumar sir, Director IHP Patna, as a token of love and respect. Thank you, sir. Thank you, ma'am. I would like to request our Director, sir, Animal Husbandry Bihar, Sri Ujjwal Kumar Singh, to present their insight on this occasion. Sir, please.
इस मंच पर आसीन आदरणीय विकास आयुक्त महोदय, इस मंच पर आसीन आदरणीय अपर मुख्य सचिव महोदय एवं हमारे सहयोगी एनिमल हस्बेंड्री के डॉक्टर्सगण विभिन्न रैंक के जो आए हुए हैं, रेबीज डेज का जागरूकता कार्यक्रम, मुझे लगता है इसमें सतर्कता भी होनी चाहिए थी, क्योंकि जब मैं रिकॉल करता हूँ तो 80 ईस्वी में मैंने पहली बार इस रोग के बारे में जाना था और जागरूकता और सतर्कता के अभाव में मैंने 2 आदमियों को मरते हुए देखा। बहुत दुखद था। जिन लोगों को कुत्ते ने काट लिया था, मामूली छोटा मोटा काम करते थे और जागरूकता के अभाव में ओझा गुनी के पास चले गए। ये 80 की कहानी है, मधुबनी में। उन दिनों मेरे फादर पोस्टेड थे, वहाँ पर मैं भी था। जागरूकता के अभाव में ओझा गुनी के पास गए, रोग बढ़ा। मुझे याद है वो कहने के लिए आए कि अब हम नहीं बचेंगे। सामने में हॉस्पिटल था मधुबनी का, हम लोग का सामने में, लेकिन जागरूकता सतर्कता के अभाव में उनको पानी से डर के भागते हुए भी देखा। फिर एक घटना मुजफ्फरपुर की भी मुझे याद है। तो इसलिए मैं जब सर्विस में आया तो जब सरकारी अस्पतालों के निरीक्षण वगैरह में निर्देशों का आलोक में जाता था तो जिलाधिकारी महोदय का निर्देश रहता था कि एंटी वेनम वाला जरूर देख लीजिएगा कि है कि नहीं। लेकिन मुझे बचपन की स्मृति थी, मैं पूछता था कि उसके अलावा रेबीज वाला है कि नहीं। तो कई जगह नहीं मिलता था, आगे बताते भी थे। तो मेरे एक डीएम थे जो भारत सरकार में आजकल हैं, तो कह रहे रेबीज वाला तुमको किसने कहा जी? हम कहे सर रेबीज वाला। कहे ना ये भी जरूरी है, ये भी काट सकता है। लेकिन अब परिस्थिति बदल चुकी है, अब ऐसी घटनाएं कम मिलती हैं, लोग जागरूक भी हैं, सतर्क भी हैं। अंदर भी घुसे। जब बाद में इस रोग के बारे में 81 में अच्छी जानकारी मिली तो मालूम हुआ कि गीदड़ से भी होता है, ये बंदर के काटने से भी होता है। लेकिन बाहर भी हम लोगों ने जो साइनेज देखा उसमें केवल कुत्ता का फोटो है। तो ये परिस्थितियां बदल चुकी हैं, समाज भी बदल चुका है। अब अधिकांश अच्छे घरों में कुत्ते प्रवेश कर चुके हैं, कुत्ते हैं उनके यहाँ। मेरे घर में भी मेरी इच्छा के बगैर, मेरी पत्नी की इच्छा के बगैर कुत्ता प्रवेश कर चुका है। कुत्ता रहता है एक छोटा सा, और मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरे बच्चों ने ला दिया है। तो ये सबों के साथ ये प्रॉब्लम है। वही नहीं, मैं इस विभाग में 1 महीना पहले आया, उसके बाद एक वीआईपी कॉल आया मुझे 2 दिन के बाद। तो जेडी साहब को याद ही होगा। हमने कहा देखिए अरे साहब ने कहा कि हमारा पेट बीमार है। तो कहीं नहीं सर पेट नहीं हुआ, कुत्ता होगा। थोड़ी देर बाद इन्होंने कंफर्म किया कुत्ता ही है। कल भी मैंने इनको फोन किया, कुत्ता का ही मामला था, बोरिंग रोड किसी को भेजना था। तो ये समझ जाइए कि अच्छे कुत्ते, परचेजिंग पावर लोगों की बढ़ चुकी है, क्रय शक्ति बढ़ चुकी है लोगों के, आम घरों में अच्छे कुत्ते। और स्ट्रीट डॉग्स का भी अपना एक अलग मामला है। उसको भी खिलाने वाले, देखने वाले काफ़ी लोग हैं। अगर मॉर्निंग वॉक आप निकलते होंगे जाड़ों के दिन में तो बहुत सारे लोग हैं जो उनके लिए कूट का और कुछ तो गद्दा वगैरह भी बाज़ाब्ता लगा देते हैं उसमें उसके बच्चों को। पहले तो मैं रोटी देखता था, अब उससे भी इम्प्रूव कर गया है। नॉर्मल जो है तो पार्ले वगैरह का बिस्कुट भी दिखाई देता है, दूध भी देते हैं। खैर कहने के मतलब है क्या कि ये सामाजिक परिवर्तन है जिसमें कि कुत्ते के साथ हम लोग रह रहे हैं, लेकिन उसके कारण मानव के जान माल की क्षति नहीं हो। तो एक पक्ष को हम देख सकते हैं कुत्ते के मामले में, और कुछ कमी हम लोगों की रही है। हम लोगों को ये कोऑर्डिनेटेड वे में मानव स्वास्थ्य के का जो विभाग है उसके साथ करना चाहिए था। क्योंकि दूसरा पक्ष है कि उसमें रेबीज से भाई कष्ट किसको होता है? तो मानव जाति को होता है। जान कहाँ जाती है? जान माल की क्षति होती है तो मानव जाति में होती है। लेकिन एक पक्ष जो प्रिकॉशनरी है उसके लिए हम लोग सतर्क रहें। हमारे डॉक्टर्स एंटी रेबीज को लेके बताएं भी लोगों को। बहुत सारे सिम्टम हैं जिसमें कि पहले भी कहा जाता था कि अगर कुत्ते ने काट लिया तो वाच कीजिए कि कुत्ता 8 दिन के अंदर मर जाता है कि नहीं। अगर मर जाता है तो आवश्यक है, तो खैर उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है। अब तो 3 ही दिन में लोग। तो चलिए बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें, मुख्य यही है सतर्क रहना है, जागरूक रहना है। और आप फील्ड में हैं, हम लोग टेक्निकल आदमी नहीं हैं।
आप डॉक्टर से आपकी बात लोग ज़्यादा गंभीरता से लेंगे। जैसे कोई गैर जानकार आदमी या आर्ट्स पढ़ा हुआ आदमी कोई दवा किसी को बता देता है, उसकी तुलना में कोई MBBS वाला बताएगा तो उसकी मान्यता अधिक रहती है। उसी प्रकार से आपके सुझावों के, आपके एक्शंस के मान्यता ज़्यादा रहती है, बहुत ज़्यादा रहती है। इस विश्वास के साथ कि केवल आज कार्यक्रम नहीं मना रहे हैं, हम जागरूक सतर्क खुद भी रहेंगे, अगल बगल भी लोगों को करेंगे, जहां हमारे कार्यस्थल है वहां भी लोगों को रखेंगे और ये सुनिश्चित करेंगे जिसके कारण कोई क्षति नहीं हो हम लोग। चलिए, इसी विश्वास के साथ धन्यवाद। Thank you, sir, for your thoughtful words and for inspiring us all. Thank you. Now, I would like to request our respected Dr. N. Vijayalakshmi Ma'am, Additional Chief Secretary, AFRD Bihar, to share a few words with us. It's my honor to call upon to enlighten us with her speech. Ma'am, please. आज एंटी रैबीज कैंपेन का इस वर्ष का शुभारंभ हम लोग करने जा रहे हैं। इस सभा के मुख्य अतिथि के रूप में हमारे बीच उपस्थित बहुमुखी प्रतिभा के धनी और इस राज्य के विकास आयुक्त आदरणीय सिद्धार्थ जी, मंच पर उपस्थित निदेशक पशुपालन सुनील ठाकुर जी, जॉइंट डायरेक्टर, LRS डायरेक्टर एवं पटना के रीजनल डायरेक्टर श्री रणधीर जी, अरविंद जी बासु से, और यहाँ पर उपस्थित आप सभी विभाग के। नहीं, इसको रखना ही नहीं है ना, नोबडी कैन सी मी फ्रॉम देयर। क्यों ऐसा करते हैं, बार बार नहीं बताते। इस विभाग के सभी सीनियर ऑफिसर्स, दरभंगा से भी मैं देख रही हूँ और अन्य जगहों से भी लोग आए हुए हैं, और पत्रकार बंधुओं, आज जो एंटी रैबीज कैंपेन का शुरुआत इस साल का क्योंकि ये एनुअल डे है, हमारे विभिन्न कैलेंडर में हमारे विभाग से संबंधित विभिन्न दिन निर्धारित होते हैं। फिशरीज का, एनिमल हस्बेंड्री का, डेयरी का, नेशनल मिल्क डे, नेशनल फिशरीज डे, इसी तरह एनिमल हस्बेंड्री में भी विभिन्न डेज हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। उसी कड़ी में आज हम लोग विश्व रेबीज दिवस का आयोजन निदेशालय के द्वारा किया गया है। तो आज का थीम भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है, यू मी एंड एक्ट नाउ, यू मी एंड द कम्युनिटी। तो सब लोग मिलकर काम करेंगे तभी रेबीज जैसा जानलेवा जो बीमारी है, जानलेवा जो सबसे डेंजरस जो वायरस से जो संक्रमित होने वाले जूनोटिक डिसीज़ है, इसके ऊपर हम विजय पा सकते हैं। पूरे विश्व में देर आर सो मेनी कंट्रीज वेयर दिस डिसीज इज नॉट देयर एट ऑल, मतलब ज़ीरो। सारे डेवलप्ड नेशंस में रेबीज नहीं है, क्योंकि हम लोग अभी भी प्रगतिशील देश में गिने जाते हैं। एंड वी वांट टू अचीव विकसित भारत बाय 2047। बिहार पीछे नहीं है, बिहार भी विकसित बिहार 2047 होना है। तो हम लोगों को बहुत सारे चीज़ों से निजात पाना है, उसमें रेबीज भी एक प्रमुख विषय है। जैसा कि FMD, हम हमेशा कहते हैं FMD फ्री जोन्स बनाया जाए, पूरे बिहार को FMD मुक्त कराया जाए, फुट एंड माउथ डिसीज़, ताकि
हमारे जो गाय का दूध जो है वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इंटरनेशनल लेवल पे खड़े उतर सके, उसके लिए एफएमडी फ्री होना बहुत ज़रूरी है। उसमें आप सभी का योगदान बहुत ही महत्वपूर्ण है और उसके लिए हम लोग एफएमडी राउंड्स चलाते हैं। तो हमारे विभाग किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए काम करता है। हमारे विभाग ओवरऑल कैटल डेवलपमेंट के लिए काम करता है। हमारे विभाग का कर्तव्य केवल इनफैक्ट अगर मैं दूसरे शब्दों में ऐसे कहूँ कि हमारे विभाग का जो रूल्स ऑफ एग्जीक्यूटिव बिजनेस है उसमें अति महत्वपूर्ण विषय है कि एनिमल हस्बेंड्री के ज़रिए, एनिमल हस्बेंड्री के अंदर जो भी आते हैं, चाहे कैटल डेवलपमेंट हो, पशुपालन के अंदर कैटल डेवलपमेंट भी आता है, पोल्ट्री डेवलपमेंट भी आता है, गोट्री डेवलपमेंट भी आता है, तो ये सारे चीज़ पशुपालन के अंदर आता है। हस्बेंड्री प्रैक्टिसेस और डेवलपमेंट, तो इसके ज़रिए किसानों की आमदनी को बढ़ाना, ये हमारा रूल्स ऑफ एग्जीक्यूटिव बिजनेस है। हमारे विभाग का अगर कोई पेट शौक से पाल रहा है, अपने एंटरटेनमेंट के लिए, अपने आनंद के लिए, अपने विनोद के लिए, अगर घर में कोई पेट रखा है तो दैट डजंट डायरेक्टली कम अंडर आवर डिपार्टमेंट। ठीक है, आप वेटरनेरियन हैं, यू नो हाउ टू ट्रीट ए पेट एनिमल, यू नो हाउ टू ट्रीट ए डॉग, यू नो हाउ टू ट्रीट ए कैट, ये सब आप जानते हैं एज ए वेटरनेरियन क्योंकि पढ़ाया जाता है। बट व्हेन इट कम्स टू द डिपार्टमेंट्स प्राइमरी रोल किसानों का आय बढ़ाना थ्रू एनिमल हस्बेंड्री प्रैक्टिसेस, through cattle development activities, through poultry development activities, through poultry development activities. So this is our prime role. उसके साथ साथ क्योंकि लोग बहुत सारे एनिमल्स को एज ए पेट पालते हैं, एक तरफ से देखा जाए तो गाय भी पेट ही है, बट गाय से वो डोमेस्टिकेटेड एनिमल है। पहले तो वाइल्ड में रहता था, व्हेन वी वर हंटर्स गैदरर्स, दिस वर आल्सो वाइल्ड एनिमल्स। जैसे जैसे ह्यूमन बीइंग्स हंटर गैदरर स्टेज से आगे बढ़े, डोमेस्टिकेट खुद हुए, तो एनिमल्स को भी डोमेस्टिकेट करने लगे, तो कैटल भी डोमेस्टिकेट हो गया और बहुत सारे अन्य एनिमल्स भी डोमेस्टिकेट हो गए थे, और तद्वारा उनके माध्यम से आमदनी बढ़ाने का भी आदमी ने सीख लिया। बट जहाँ तक कैट्स एंड डॉग्स की बात आती है तो ज़्यादातर लोग अगर अपने घरों में पालते हैं तो अपने विनोद के लिए पालते हैं, अपने एंटरटेनमेंट के लिए पालते हैं, अपने एक साथी जैसा उसको रखने के लिए पालते हैं, तो उसके माध्यम से एंटरटेनमेंट मिलता है, उसके माध्यम से आमदनी नहीं मिलता, तो वो थोड़ा सा वेरी स्लाइट डिफ्रेंसिएशन है। तो जहाँ तक रेबीज़ का बात है, तो रेबीज़ अभी भी हम लोग झेल रहे हैं, इसका मतलब वी आर स्टिल अंडर डेवलप्ड। जो कंट्री डेवलप्ड है, जो कंट्री डेवलप्ड नेशन है, वहाँ रेबीज़ नहीं है। तो इसका कारण क्यों है, क्या है? एक तो बहुत बड़ी आबादी ह्यूमन बीइंग्स का भी और एनिमल्स का भी, तो उसमें जो पेट एनिमल्स हैं वो एक प्रमुख हिस्सा है, दूसरा स्ट्रे एनिमल्स है वो दूसरा प्रमुख हिस्सा है। तो दोनों का रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी ना किसी को लेना है। तो खास करके जब पेट एनिमल्स की बात आती है तो पेट ओनर्स हैव टू बी वेरी वेरी रिस्पॉन्सिबल टुवर्ड्स देयर पेट्स। केवल पेट को ले आके घर में रखने से काम नहीं चलता है। इट इज़ नथिंग बट वन मोर फैमिली मेम्बर। इसको और एक फैमिली मेम्बर होता ही होता है पेट, क्योंकि हर एक चीज़ उसको एक छोटा बच्चा जैसा आपको पालन पोषण करना पड़ता है। यू नो बेटर दैन मी, हर चीज़ उसको देखना है, हर खाना पीना से उसका हेल्थ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हर तरह का वैक्सीनेशन उसको दिलाना पड़ता है, नहीं तो आप ही को नुकसान करेगा। अगर किसी एनिमल को आपने रेबीज़ का वैक्सीन नहीं कराया पेट एनिमल को, तो पेट ओनर का फैमिली को ही नुकसान होता है। सो दिस काइंड ऑफ अवेयरनेस सभी पेट ओनर्स में होना अत्यंत आवश्यक है, और ज़्यादातर 100% आई थिंक 99% पेट ओनर्स जरूर रेबीज़ वैक्सीन लगाते हैं। जब दूसरी बात आती है जो स्ट्रे एनिमल्स की, तो स्ट्रे डॉग्स बहुत सारे हमारे देश में पूरे रोड्स में गलियों में घूमते रहते हैं। उसका मेनेस
हम सभी लोग जानते हैं उसके बारे में। कितने सारे इंसिडेंट्स हो रहे हैं, एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, लोग गिर जा रहे हैं, बेटर स्ट्रे एनिमल्स पीछे लग जाते हैं मॉर्निंग वॉक में, बहुत सारे लोग गिर जाते हैं, हिप फ्रैक्चर, एज्ड वुमेन को, एज्ड मैन को कितने सारे फ्रैक्चर्स हो रहे हैं, छोटे छोटे बच्चों को खा जा रहा है स्ट्रे एनिमल। इट्स अ बिग मेनेस। तो इसके लिए जो जिम्मेदारी है, मतलब सरकारी तौर पर जो जिम्मेदारी है, वो अर्बन लोकल बॉडीज को दी गई है एज पर देयर रूल्स ऑफ एग्जीक्यूटिव बिजनेस। फिर भी क्योंकि हमारा विभाग ओवरऑल एनिमल हस्बेंड्री इश्यूज देखता है, तो इसीलिए हम लोग आज रेबीज वैक्सीनेशन का शुरुआत कर दिए हैं। करीब 10,000 डोसेस LRS ने खरीदा है और 10,000 डोसेस विभिन्न अनुमंडलों में, जिलों में लोग आज वैक्सीनेशन एक कैंपेन के रूप में शुरू किए हैं। इसके अलावा ये केवल जो डॉग्स है उसका जो वैक्सीनेशन की बात है, बट अगर डॉग किसी को बाइट करता है तो उस हालत में वो ह्यूमन वैक्सीन जो है, ह्यूमन बीइंग्स के लिए वैक्सीन, वो हेल्थ डिपार्टमेंट का जिम्मेदारी है। तो हेल्थ डिपार्टमेंट ये वैक्सीन खरीद के अपने सारे PSCs में और अपने हॉस्पिटल्स में अवेलेबल कराता है, ये उनका जिम्मेदारी है। बट अगर डॉग किसी गाय को काटा है, कैटल को काटा है, बकरी को काटा है, दूसरे एनिमल को काटा है, तो वो जिम्मेदारी आपकी है, हमारे विभाग की। तो उस हालत में क्या करना है, तो उनको किस तरह के पोस्ट बाइट ट्रीटमेंट, पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइल एक्सेस आप कहते हैं ना, PEP। तो PEP के लिए आप कैसे उसका ट्रीटमेंट कैसे करेंगे, उसका वैक्सीन क्या होता है, उसका दवाई, उसका ट्रीटमेंट, उसका प्रोटोकॉल सब आप जानते हैं। वो सभी वेटरनरी डिस्पेंसरी में अवेलेबल है। पिछले साल हम लोग कभी करीब 50,000 डोसेस खरीदे थे, वो हम लोगों ने पता किया तो वो अभी भी है। इसीलिए इस साल आप लोगों ने शायद इंडेंट नहीं किया, ज़रूरत पड़ेगा तो ज़रूर इंडेंट करिए, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। तो ये 3 तरह के, एक तो प्रिवेंशन के लिए सभी डॉग्स जो पेट डॉग्स है, स्ट्रे डॉग्स है, सभी को वैक्सीन दिलाना है। पोस्ट बाइट के बाद एनिमल्स को दिलाने के लिए हमारा विभाग जिम्मेदार है। और अगर ह्यूमन बीइंग्स को अगर कोई डॉग बाइट करता है तो उनके लिए जिम्मेदारी हेल्थ डिपार्टमेंट करता है। तो ये एक छोटा सा इश्यू नहीं है, इसमें 3 अलग अलग डिपार्टमेंट्स और उनके सारे जो फ्रंटलाइन वर्कर्स को इकट्ठा होकर काम करना है। इट्स ए वेरी बिग इश्यू, इट्स नॉट ए सिंपल इश्यू। इंटर डिपार्टमेंटल कोऑर्डिनेशन, इंटर डिपार्टमेंटल कन्वर्जेंस से ही ये संभव है। तो यहाँ पर मैं विकास आयुक्त महोदय भी बैठे हुए हैं, तो उनका अटेंशन भी अट्रैक्ट करना चाहूँगी, क्योंकि ये स्ट्रे डॉग का मेनेस जो है रूल्स ऑफ एग्जीक्यूटिव बिजनेस के अनुसार अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट का है, लेकिन लोगों को ये सब, आम जनता को इतना सारा चीज़ पता नहीं होता है। रूल्स ऑफ एग्जीक्यूटिव बिजनेस में किसका काम क्या लिखा हुआ है कोई नहीं देखता है, और कोई किसी को समझ भी नहीं है। तो जहाँ पे एनिमल्स की बात आती है, इंक्लूडिंग डॉग्स, तो सभी लोग फ़ोन हमारे विभाग को ही घुमाते हैं, हमारे विभाग के पदाधिकारियों से ही पूछते हैं, हम ही को कॉल्स आते हैं कि स्ट्रे डॉग्स का प्रॉब्लम है, आप क्या कर रहे हैं, आप कुछ नहीं कर रहे हैं। तो ये बदलने की आवश्यकता है। इनफैक्ट ये मुद्दा जो है मैंने भारत सरकार के सामने भी उठाया था, भारत सरकार के सचिव मैडम के सामने भी उठाया था कि ये स्ट्रे डॉग्स मेनेस, we are well aware of this, we are very conscious about this issue। तो हम काम करना चाहते हैं। ABC के अंदर एनिमल बर्थ कंट्रोल रूल्स जो बने हैं उसमें थोड़ा संशोधन के लिए मैंने रिक्वेस्ट किया था कि आप संशोधन कराइए, इसमें एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट को दायित्व दीजिए। तो वी आर वेल एक्वाइंटेड, वी आर वेल अवेयर, वी विल डू दिस जॉब, लेकिन वो हो नहीं पाया है। और जो ABC रूल्स है, एनिमल बर्थ कंट्रोल रूल्स, उसमें अर्बन लोकल बॉडीज को ही ये दायित्व दिया हुआ है। तो खैर आपने बुलाया भी नहीं उनको इस मीटिंग में, तो कहाँ पे अर्बन लोकल बॉडीज ये सारा काम कर रहे हैं? आई एम नॉट अवेयर। अगर अर्बन लोकल बॉडीज स्ट्रे डॉग्स को पकड़ रहे हैं, स्ट्रे डॉग्स को स्टेरिलाइजेशन कर रहे हैं, उनका वैक्सीनेशन करा रहे हैं, बिकॉज इट्स नॉट ए सिंपल इश्यू। क्योंकि स्ट्रे डॉग्स को पकड़ने के लिए आप लोगों को मैं बोलूँगी कि आप जाके पकड़ के स्ट्रे डॉग को आप
वैक्सीन डालिए। कितने लोग रेडी हैं बताइए, थोड़ा हाथ उठाइए। कोई नहीं करना चाहते। यू आर ए वेटरनेरियन, फिर भी आप नहीं करना चाहते, क्यों? इट्स नॉट ए सिंपल थिंग। मैड डॉग है, स्ट्रे डॉग है, किसी को काट देगा, सबसे पहले तो आप ही को काट देगा। तो उसके लिए एक पूरा टीम चाहिए होता है, उसके लिए बहुत सारे साधन चाहिए होता है, व्हीकल्स, एनिमल कैचिंग व्हीकल्स चाहिए होता है। एनिमल कैचर्स अलग से होते हैं, उनको ट्रेनिंग दी जाती है, वो पूरा सारा सामान ऊपर से नीचे तक थोड़ा पहनना पड़ता है उनको, कुछ एप्रॉन जैसा, कवच जैसा कुछ, मतलब तुरंत काटे तो उनको घाव ना हो। देयर आर सो मेनी थिंग्स, मतलब हनी बी का जो छत्ता, उसमें से हनी निकालने के लिए लोग पूरा ऊपर से नीचे पहनते हैं, वैसे ही यू नीड सम डिफरेंट काइंड ऑफ प्रोटेक्शन गारमेंट्स, वो सब चाहिए होता है। पकड़ने के लिए ट्रेनिंग चाहिए होता है। इट्स अ वेरी कॉम्प्लेक्स जॉब, इट्स नॉट ए सिंपल जॉब, इसीलिए कोई करता भी नहीं है ना। अर्बन लोकल बॉडीज उसके लिए टेंडर करके एजेंसीज को भी नहीं चुन रही हैं, तो वो सब के लिए रेट्स भी निर्धारित है एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया के माध्यम से, सब चीज़ है, बट नोबडी इज डूइंग इट। तो हम लोग करने के लिए रेडी है, वी कैन टेक इट अप, बिकॉज वेटरनेरियंस आर देयर इन एवरी डिस्ट्रिक्ट। अर्बन लोकल बॉडीज़ के अंदर भी वेटरनेरियंस है, फिर भी हमारा रूल्स ऑफ एग्जीक्यूटिव बिजनेस में नहीं आता है, तो हम कर नहीं पा रहे हैं। इनफैक्ट सुप्रीम कोर्ट में इतना बड़ा आदेश हुआ है, सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों के एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट्स को भी नोटिस भेजा है कि आप इसमें एफिडेविट करिए क्या करना चाहते हैं। बट ऑफ कोर्स दे डिड नॉट गिव एनी रेस्पॉन्सिबिलिटी टू अस। हम लोगों को केवल बोला है कि आप एफिडेविट करिए, बट पूरा ऑर्डर हमने पूरा 2 बार पढ़े, 3 बार पढ़े, लेकिन उसमें कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी इस विभाग को नहीं दी गई। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट इश्यू है। सभी लोगों को एटलीस्ट दिस 3 डिपार्टमेंट्स शुड कम टुगेदर टू डू दिस थिंग, तभी ये रेबीज मुक्त बिहार और रेबीज मुक्त भारत की कल्पना हम कर सकते हैं। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी शुड कम टुगेदर। दूसरा मैं इम्पॉर्टेंट इश्यू में के बारे में बताना चाहूँगी, जो वन हेल्थ अप्रोच है। बार बार मैंने बहुत बार इस प्लेटफॉर्म में इस चीज़ के बारे में बताया है। वन हेल्थ अप्रोच के अंदर कॉन्सेप्ट बेसिकली ये है कि हेल्थ ह्यूमन बीइंग्स का, आपका हेल्थ मेरा हेल्थ अलग अलग नहीं है। आज के दिन में आपका हेल्थ, आपका गाय का हेल्थ अलग नहीं है, आपका हेल्थ और आपका पेट का हेल्थ, आपका जो डॉग है घर में उसका अलग अलग नहीं है। आप स्वस्थ होंगे तो आपका पेट भी स्वस्थ होगा। अगर आपका पेट, आपका घर में जो डॉग है वो स्वस्थ होगा, तभी आपका पूरा परिवार स्वस्थ होगा, इंक्लूडिंग योर स्मॉल चिल्ड्रन और बुजुर्ग लोग जो घर में रहते हैं। तो देयर इज सो मच ऑफ इंटरडिपेंडेंस, एक दूसरे के ऊपर हम लोग निर्भर करते हैं। इसी को आप सब लोग बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, जूनोसिस हम कहते हैं कि एनिमल से ह्यूमन बीइंग्स में आने वाले जो भी डिजीज़ है उसको जूनोटिक डिसीजेस बोलते हैं। कोरोना was one of the biggest examples. Rabies is second largest example. बहुत सारे ऐसे बीमारियां हैं जो ह्यूमन बीइंग से भी जानवर में, स्पेशली आपके पालतू जानवर में जाने वाले डिसीजेस है। फॉर एग्जांपल टीबी, अगर आपको टीबी है तो आपके पालतू एनिमल्स को भी टीबी आ जाएगा, अगर उनको है तो आपको भी आ जाएगा। सो देयर आर सो मेनी संक्रामक रोग हम कहते हैं, कम्युनिकेबल डिसीजेस। ये सारे कम्युनिकेबल डिसीजेस एनिमल से ह्यूमन बीइंग्स में, ह्यूमन बीइंग्स से एनिमल्स में, प्लांट से एनिमल्स में, प्लांट से ह्यूमन बीइंग्स में फैलता रहता है। तो हम सभी लोग मिलकर एक वसुधैव कुटुंबकम है, यूनिवर्सल फैमिली है हम सभी लोग। ये आज हम लोग बात कर रहे हैं 21st सेंचुरी में, लेकिन सदियों पहले हमारे ऋषि मुनियों ने इसको बाखूबी समझा और सभी लोगों को यही ज्ञान दिया कि हम सभी लोग वसुधैव कुटुंबकम है, हम एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंडेंट है। अगर प्लांट किंगडम नहीं है तो हम नहीं हैं, अगर एनिमल किंगडम नहीं है तो हम नहीं हैं, अगर प्लांट किंगडम नहीं है तो एनिमल किंगडम भी नहीं है। तो इतना इंटरडिपेंडेंस हम एक दूसरे के ऊपर रहता है, तो हम लोग को थोड़ा लेश मात्र भी ईगो नहीं पालना चाहिए। हम महान हैं, हम बड़ा ग्रेट है,
हर एक ऑफिस में वही प्रॉब्लम है ना आज के दिन में, ईगो क्लैशेस, ईगो इश्यूज। लेकिन जब आप ये पूरे विश्व में एक वसुधैव कुटुंबकम में आप एक छोटी सी प्राणी अपने को समझते हैं, जो प्राणी एक दूसरे के ऊपर इतना हद तक निर्भर है कि उसका जीवन ही नहीं चल पाता, अगर प्लांट्स नहीं है तो वो जिंदा ही नहीं रह पाता। तो इतना मात्र हम लोग समझ ले तो हमारे पूरा जीवन बहुत अच्छा रहेगा, हमारे जो अंदर जो ईगोस हैं वो काफ़ी हद तक कम होंगे। तो मैं इसीलिए ये बात कह रही हूँ कि ये वन हेल्थ अप्रोच कंप्लीटली वसुधैव कुटुंबकम के कॉन्सेप्ट में आधारित है। तो इसके लिए भी हम सभी लोगों को, चाहे वो ह्यूमन हेल्थ वाले डिपार्टमेंट हो, एनिमल हेल्थ वाले डिपार्टमेंट हमारा हो, अर्बन लोकल बॉडीज हो, रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट हो, अन्य जितने भी डिपार्टमेंट्स है, इरिगेशन हो, माइनर इरिगेशन हो, इलेक्ट्रिसिटी, एवरीबॉडी हैज़ टू थिंक एज ए होल। इसीलिए हम लोग गवर्नमेंट एज ए होल कॉन्सेप्ट का भी आजकल काफ़ी बल दिया जा रहा है। वी शुड थिंक एज गवर्नमेंट एज ए होल। हम लोग साइलोस में, कंपार्टमेंटलाइजेशन में, कंपार्टमेंट्स में बात नहीं कर सकते हैं, सोच नहीं सकते हैं। तो दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो वन हेल्थ के अंदर हम लोग इंफ्रास्ट्रक्चर भी डेवलप कर रहे हैं। वी हैव ऑलरेडी सैंक्शन वन हेल्थ प्रोजेक्ट, उसका बहुत जल्दी वासु के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होने वाला है, लैबोरेटरीज डेवलप होने वाले हैं। उसके साथ साथ हमारे जो IAHP के अंदर BSL-2 लैब अभी बनने जा रहा है, वो जल्दी बन जाएगा। तो काफ़ी हद तक आपकी सर्विलेंस, सीरो सर्विलेंस, आपकी जो लैब के जो टेस्ट हैं, ये सारा चीज़ यहीं पे अवेलेबल हो जाएंगे। उसके साथ साथ आपके जो डिस्ट्रिक्ट लेवल लैबोरेटरीज है, उसके ऊपर भी हम लोग को ध्यान देना है। अभी तक हम लोग प्रोडक्शन करके काफ़ी प्रोडक्शन के ऊपर फोकस किए हैं। अब पूरा हमारा फोकस इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर है। आपके जिला स्तरीय बहुत सारे बिल्डिंग्स बन गए हैं। अभी हम लोग लैब इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर, कोल्ड चेन इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर हमारा इस साल फोकस रहेगा। तो ताकि ये जितने भी आपका जो टेस्ट है, चेकअप्स जो करना होता है, एनिमल का हेल्थ चेकअप है, आपका जो सैंपल्स कलेक्ट करते हैं, ब्लड सैंपल्स या अन्य तरह के सैंपल्स, जो आपका एवियन इन्फ्लुएंजा में जब भी सैंपल्स कलेक्ट करते हैं आपको बाहर भेजना पड़ता है। तो वो सारे प्रॉब्लम्स का निजात दिलाने के लिए हम लोग बहुत जल्दी आपका BSL-2 लैब रेडी हो जाएगा। तो ये LRS डायरेक्टर को ही इसको सक्सेसफुल बनाना है। अगर ये हो जाएगा तो काफ़ी हद तक हम लोगों का जो समस्याएं हैं वो सॉल्व हो जाएंगी। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं फिर से एक बार आप सभी को धन्यवाद भी देना चाहूँगी, क्योंकि आप सभी लोग वेटरनेरियंस हैं, इस फील्ड में लगे हुए हैं। यू अंडरस्टैंड दिस इश्यूज बेटर, बट एक्शन अंडरस्टैंडिंग से, बहुत अंडरस्टैंडिंग होने से नहीं होता है, एक्शन में हम लोग को आना है। और जितना हो सके हम लोग वन हेल्थ अप्रोच के साथ काम करते हुए, अन्य विभागों के साथ इंटर डिपार्टमेंटल कोऑर्डिनेशन बनाते हुए, बिठाते हुए इस इशू को इरेडिकेट करना है कम्प्लीटली। जैसा पोलियो इरेडिकेशन हुआ है, वैसे रेबीज इरेडिकेशन, FMD इरेडिकेशन, ये सब चीज़ आप लोगों के कर कमलों से ही होना है। इसीलिए आप लोग अपना मनोबल को ऊंचा रखें और अपने अपने ज़िलों में, अपने अपने जहाँ भी काम कर रहे हैं वहाँ पे अपने साइलोस में नहीं रहे। हमेशा यू शुड टॉक टू योर हेल्थ काउंटरपार्ट, यू शुड टॉक टू योर अर्बन लोकल बॉडीज काउंटरपार्ट, उनसे बात करना चाहिए, कोऑर्डिनेशन में रहना चाहिए। तो इन्हीं शब्दों के साथ फिर से एक बार आप सभी लोगों को धन्यवाद। और हम लोग ये रेबीज़ का जो कैंपेन चला रहे हैं उसको अच्छी तरह चलाएं और कोशिश करें कि लोगों में अवेयरनेस क्रिएट करें, पेट ओनर्स में, और जो भी लोग स्ट्रे डॉग्स को खिलाते हैं उन लोगों के अंदर, और अदर NGOs के अंदर, अर्बन लोकल बॉडीज़, पंचायतों के अंदर रेबीज़ के ऊपर अवेयरनेस क्रिएट करें और रेबीज़ को हम लोग बिहार से और भारत से भगा दें। बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you, ma'am, for your guidance and the meaningful message you conveyed. Now we have the privilege of hearing from our chief guest, Dr. Ed Siddharth Sir, Development Commissioner of Bihar. Sir, please.
आज इस वर्ल्ड रेबीज डे के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं पशुपालन विभाग की अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एम विजयलक्ष्मी जी, निदेशक पशुपालन श्री उज्जवल कुमार सिंह जी, मंचासीन हमारे पशुपालन विभाग के सभी वरिष्ठ पदाधिकारीगण, आज इस समारोह में उपस्थित हमारे सभी विभिन्न क्षेत्रों जिलों से आए हुए हमारे सभी डॉक्टर्स और पत्रकार बंधु, सर्वप्रथम मैं वर्ल्ड रेबीज डे के अवसर पर मैं सबको अपनी शुभकामनाएं देता हूं। रेबीज के बारे में हमारे पूर्व के वक्ता निदेशक पशुपालन और अपर मुख्य सचिव ने अनेक बातें कही और मेरा मानना है कि यह एक अवॉइडेबल डिजीज है और इसका अवॉइड करने की हमको पूरी मेहनत करनी चाहिए। वैक्सीनेशन होना चाहिए और समय पे वैक्सीनेशन होना चाहिए। मुझे आज भी याद है जब मैं बिहार आया था, मेरी प्रथम ट्रेनिंग एटीआई में रांची में हो रही थी। डायरेक्टर पशुपालन ने कहा कि उनके घर में पेट उनके इच्छा के विपरीत आया, लेकिन मैं ये जानकारी देना चाहूंगा कि एटीआई में जब ट्रेनिंग हो रही थी, मेरे कोलीग आईएएस एक कुत्ता ले आया ट्रेनिंग में। मैं भी एक यंग ट्रेनी था और वो कुत्ता हमारे कॉरिडोर में एटीआई रांची में घूमता रहता था। शरारती दिमाग तब से मेरा था। कभी मैंने सोचा कुछ उसके साथ छेड़खानी करो कुछ, तो अचानक उसने मुझे काट लिया। और मुझे जैसे ही उसने मुझे काटा तो अब हुआ कि अब कुत्ते काटने पर अब क्या किया जाए। तो लोगों ने कहा कि सुई लगानी चाहिए। तो उस वक्त बड़ी बड़ी सुइयां आती थी, पेट में लगाना पड़ता था, 6 सुइयां। सोच के ही डर लग गया। हमारे जो बाकी कोलीग थे 91 बैच के, प्रत्यय अमृत थे, एपी सिंह थे, शैलेश कुमार सिंह थे, गौतम गोस्वामी थे, सुप्रिया साहू भी एक ऑफिसर थी। तो सब लोगों ने जिद पकड़ लिया कि नहीं, आपको इसकी रेबीज की सुई लगाना ही। उससे पता चला कि एक नई वैक्सीन आई है जिसमें 3 डोज लगते हैं। रेबीपुर करके नाम से एक वैक्सीन थी। हम पूरे रांची खोजने लगे कि भाई ये मेडिसिन कहाँ मिली, और अंतर्गत में एक दुकान में मिली। बहुत दुनिया भर घूमा, सारे रांची घुमाए और एक दुकान कहीं जहां पे फ्रिज में, इसमें रेफ्रिजरेटर में उसके बाद डोसेस थे। और फिर मुझे वो 3 डोज समय पे लगे। 0 डे था, मेरे का 3 या 6 डे था और 15 था समथिंग, कुछ ऐसा था। तो मेरा अनुभव और मेरा जो संपर्क रेबीज हुआ वो शुरू में ट्रेनिंग से ही हो गया और ये मेरे दिमाग में बैठा रहा कि भाई ये बहुत गंभीर बीमारी है और इससे बच के रहना चाहिए। और मैं मानता हूं आज भी कि बहुत गंभीर बीमारी, जिस परिस्थितियों में मौत होती है और जिस कंडीशंस में मौत होती है, मेरे ख्याल से उसको देखने लायक नहीं। अनेक विभाग इसमें है, इन्वॉल्व है। पशुपालन एक विभाग है, स्वास्थ्य विभाग अलग से है और साथ ही साथ फिर नगर निकाय हैं जहां पर उनको पकड़ के उनका वैक्सीनेशन में मदद करने का कार्य किया जाता है। और जब तक ये 3 विभाग एक साथ नहीं मिलेंगे, इसका समाधान निकालना संभव। मैं चाहूंगा कि अपर मुख्य सचिव ये तीनों की बैठक लगातार करें और कम से कम इसको रेबीज मुक्त शहर जो है हमारे बिहार में,
मेरे घर में भी पेट आया था, जैसे कि निदेशक पशुपालन ने कहा, अचानक एक दिन पेट आ गया, और एक बार पेट आया था तो जाता नहीं, बैठ जाता, उसके बाद वो परिवार का सदस्य हो जाता, चाहे कुछ करिए वो नहीं जाता। और जो लोग उसको हेट करते हैं घर में सबसे ज्यादा, उन्हीं से लगाव हो जाता है। अगर माता जी को उसे हेट करती हैं तो देखा वही खिलाएंगी। और मैं बहुत इंश्योर करता था कि इस पेट का वैक्सीनेशन समय पर, डेट ऑफ बर्थ तो उसको पता नहीं है कि कौन डेट से आया है, 45 दिन कहते हैं, अब कितने दिन में आया कब आया पता नहीं। तो मैं एक फिक्स डेट रखता था साल में, 15 अगस्त। मुझे पता था जैसे ही 15 अगस्त झंडा फहराना है, इसका वैक्सीनेशन भी बना, तो 15-16 अगस्त को जाके उसका वैक्सीनेशन करा। और ये प्रक्रिया मेरे विचार से, उसका वैक्सीनेशन कार्ड भी होता है, मतलब उसका जो पेट होता है उसका वैक्सीनेशन कार्ड होता है, और अगर आप उसको लेके ट्रैवल कर रहे हैं, उस वैक्सीनेशन कार्ड के बिना उसको लेके जा भी नहीं सकते, और विदेशों में तो और कठिन है। तो नियमित वैक्सीनेशन ऑफ पेट्स या तो इंश्योर करना चाहिए। और मैं इसलिए मत का हूं कि जो पूर्व में पहले लाइसेंस की व्यवस्था थी कि कुत्ता रखना है तो लाइसेंस भी आपको म्युनिसिपैलिटी से लेना होगा, पहले था लाइसेंस की व्यवस्था। ये इतनी ज्यादा संख्या में हो गया कि वो लाइसेंस की व्यवस्था नहीं, लेकिन वो बहुत महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट था कि जब भी आप लाइसेंस लेंगे तो उसका मेडिकल चेकअप होगा। हम लोग का लाइसेंस होता है, हम लोग का आधार है, हम लोग का फोटो आईडी कार्ड, विभिन्न आईडेंटिटी कार्ड है, कुत्ते का भी होना चाहिए, बिल्ली का भी नहीं, आजकल तो बिल्ली भी रखते हैं लोग, उससे भी रेबीज होता है। तो ये इंश्योर करना चाहिए कि हमको सबका वैक्सीनेशन समय पे होना चाहिए। और जहां तक आवंटन की बात है, इस बार बजट बनाने की प्रक्रिया शुरू ही हुई है। मेरे ख्याल से इनको विभाग को एक कंसोलिडेटेड हेड होना चाहिए कि वैक्सीनेशन हेड करके होना चाहिए। होता है कि बीच बीच में क्योंकि सीजनल एक्टिविटीज होती रहती हैं, तो सभी वैक्सीनेशन को मर्ज करके एक वैक्सीनेशन बढ़ाना चाहिए। होता है कि कभी पशुपालन के हेड में चला जाता है, कभी किसी हेड में चला जाएगा, कभी वो व्यय नहीं हो रहा है। अगर वो कंसोलिडेटेड हेड हो, वैक्सीनेशन हेड, तो समय समय पे जिस वैक्सीनेशन का आवश्यकता होगी उस हेड से आप उसको कर सकते हैं। अगर उसका नाम से आप रखेंगे तो हो सकता है एफएमडी की अभी जरूरत नहीं है, बाद में हो सकता है रेबीज की अभी जरूरत है, रोज हो सकता है बकरी का वैक्सीनेशन है। तो वैक्सीनेशन ऑफ एनिमल्स करके एक कंसोलिडेटेड हेड होना चाहिए, ताकि ये कंफ्यूजन बार बार ना हो। और हर निदेशालय, पशुपालन निदेशालय बोलेगा कि वो निदेशालय ने पैसा नहीं दिया, फिर वो स्वास्थ्य निदेशालय कहेगा हमको पैसा नहीं दिया। तो ये एक हेड होना चाहिए, वैक्सीनेशन ऑफ द एनिमल पॉपुलेशन। मैं जब आ रहा था, मैं सोचा कि पहली बार मुझे पशुपालन डॉक्टर्स से इंटरेक्ट करने का मौका मिला। मैं पहले कभी नहीं आया नहीं, और काफी कार्यक्रम होते रहे हैं। मेरा सबसे पहले मैं सोचा कि इस विभाग की हिस्ट्री के बारे में बहुत सारे पदाधिकारी हैं, डॉक्टर्स हैं, हो सकता है कि इसके बारे में जानते नहीं, सब नए डॉक्टर्स हैं। मैं तो देखता हूं कि नए बैचेस आए। इस विभाग से पहला संपर्क मेरा 1994 में हुआ था। मैं चाईबासा में विकास आयुक्त था, उप विकास आयुक्त था, डिप्टी डेवलपमेंट कमिश्नर। आज डेवलपमेंट कमिश्नर, तो उस वक्त मैं डिप्टी डेवलपमेंट कमिश्नर था। वेस्ट सिंहभूम करके जिला था, और सबसे पहला पशुपालन का ट्रेजरी में रेट जो हुआ था चाईबासा, मेरे ही कार्यक्रम। चाईबासा एक बहुत बड़ा जिला था उस वक्त, मतलब कंबाइंड बिहार का मेरे ख्याल से पूरे देश में सेकंड हाईएस्ट फंडेड जिला था। एक बस्तर था, और उसके बाद सेकंड हाईएस्ट फंडेड जिला था चाईबासा। बहुत सारा काम होते रहते थे, लेकिन पशुपालन डॉक्टर से कभी मेरी भेंट नहीं हुई। जब भी रिपोर्ट आता था जीरो आता था, भाई जीरो कैटल, जीरो पोल्ट्री, जीरो फिशरीज। पता नहीं क्या करता है डिपार्टमेंट, कुछ करता भी या नहीं करता है, और हमेशा जीरो रिपोर्ट आता था। और मेरा कोई मतलब ऐसा सोर्स नहीं था कि रोज जाके ट्रेजरी देखूं मैं कि भाई कितना निकासी किया।
और जब रेड हुआ, बहुत सारे करेंसी नोट्स निकले, और जैसे कि आप अखबार में सब पढ़े होंगे, तो मैं रिपोर्ट को फिर देखा। मैंने कहा यार, मेरे समय पे तो ये कुछ दिखाई नहीं, ये अचानक इतने करेंसी नोट्स कहां से आ गए। तो संजोग से जब मैंने रिपोर्ट खोल के देखा, इसका सब जीरो था। कितने कैटल पॉपुलेशन जीरो, कितने पोल्ट्री पॉपुलेशन जीरो, कितने बकरी पॉपुलेशन जीरो। तो उस वक्त जो स्थिति थी, इस डिपार्टमेंट में जो स्कैंडल्स हुए, उसके अपने तरीके थे, अपने टीम ऑफ लोग थे जिन्होंने किया। और उस घटना के बाद डिपार्टमेंट इतना शॉक था कि उसके बाद इस डिपार्टमेंट ने काम करना बंद कर दिया। मतलब जीरो, मतलब कोई काम नहीं करना इस डिपार्टमेंट, क्योंकि सारे रिकॉर्ड्स, फाइलें सारी जब्त हो गई थी, सीबीआई के पास सब ट्रांसफर हो गए थे। मुझे आज भी याद है जब 2005, 6, 7, 8 में हम लोग रिव्यू करते थे, इसके सारे रिकॉर्ड सीबीआई के पास, कोई फाइल खोजो तो सीबीआई के पास। और लिटरली डिपार्टमेंट ने कोई काम, उन्होंने सोचा कि अब इसमें कोई काम हो नहीं सकता, और सभी ने सोचा कि केवल घपला हो सकता है, कोई पशुपालन करके क्या, मतलब ये बकरी, गाय और ये सब क्या किया। और धीरे धीरे डिपार्टमेंट ने इवॉल्व किया, और सभी डॉक्टर्स के डिपार्टमेंट की कड़ी मेहनत से और डॉक्टर एन विजयलक्ष्मी के नेतृत्व में इस डिपार्टमेंट ने अपने को रिवाइव किया। और जब पहली बार मैंने इकोनॉमिक सर्वे का रिपोर्ट देखा, मैं फाइनेंस सेक्रेटरी था इस राज्य का, सर्विस सेक्टर छोड़ के, मतलब जो सर्विस सेक्टर है जिसका सबसे हाईएस्ट ग्रोथ था, एक पशुपालन सेक्टर ही था जिसका हाईएस्ट ग्रोथ था 11%। कृषि का बहुत कम था, जो मूल एग्रीकल्चर था। और उसके बाद सबकी नजर इस डिपार्टमेंट में पड़ गई। जब ये अचानक ये वो शाइनिंग डिपार्टमेंट नहीं होता है, ये तो दी डिपार्टमेंट हो गया। पहले इस डिपार्टमेंट में किसी की पोस्टिंग होती थी, बड़ा रोते रोते हुए लोग जाते थे कि पता नहीं कौन डिपार्टमेंट में हमको भेज दिया, ये तो घोटाला डिपार्टमेंट। लेकिन जब से इसने परफॉर्म करना शुरू किया और इसने जो ग्रोथ पैटर्न दिखाया, 11% ग्रोथ, चाहे वो अंडा में ग्रोथ हो, चाहे वो फिशरीज में ग्रोथ हो, चाहे एनिमल में प्रोडक्शन में ग्रोथ हो, चाहे मिल्क प्रोडक्शन में ग्रोथ हो, जो इसने ग्रोथ दिखाया, ये एक मतलब ये लाइमलाइट में आ गया। और ये एक ऐसा डिपार्टमेंट हो गया जिसमें अब सब लोग चाहते हैं कि उनसे संपर्क में रहें और इस डिपार्टमेंट के साथ जुड़े रहें। आज के दिन में जो प्रोग्रेस रहा है, आज भी अगर मैं जस्ट एनिमल और ह्यूमन पॉपुलेशन देख रहा था, एनिमल और ह्यूमन पॉपुलेशन का मोटा मोटी अगर 1:2.5, मतलब 2.5 ह्यूमन पॉपुलेशन है और लाइफ स्टॉक पॉपुलेशन 1 है। अब बड़ी संख्या है, ह्यूज पॉपुलेशन। और जितनी मेहनत हेल्थ सेक्टर में लगती है, उससे कम मेहनत इस पशुपालन सेक्टर में नहीं लगती है, और बहुत मुश्किल सेक्टर है। अब कभी कभी मैं पशुपालकों, डॉक्टर्स को मैं कभी संपर्क में देखता हूं, तो मैं उनके फील्ड से बड़ा इंप्रेस हो जाता हूं। ह्यूमन में तो कहेगा कि भाई मेरा पेट में दर्द है, मेरा लूज मोशन हो रहा है, मेरा माथा दर्द है, मेरा फीवर है। लेकिन ये अकेला एक सेक्टर है जहां पे एक पशु कोई बात नहीं करता, खड़ा रहता है या खड़ी रहती है और उसका इलाज करते हैं। बड़ा डिफिकल्ट है, मतलब ये बहुत ही डिफिकल्ट है। और इतना डिफिकल्ट सेक्टर है कि मैं एडमायर करता हूं डॉक्टर्स को, पशुपालन डॉक्टर्स को, कि इतनी मेहनत और लगन से इन्होंने इस विभाग को वापस उस मुकाम पर पहुंचाया। डॉक्टर एन विजयलक्ष्मी के कार्यकाल में इस विभाग में इंफ्रास्ट्रक्चर में आमूल-चूल परिवर्तन, कंबाइंड बिल्डिंग का स्थापना हुआ विभिन्न जिलों में,
डायरेक्टरेट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री उसने देखने गया, स्टेट ऑफ द आर्ट बिल्डिंग थी, पशुपालन यूनिवर्सिटी नई बिल्डिंग बनी। और कभी कभी मैं गांव जाता हूं, बहुत दूर दराज गांव में। एक दिन पलामू के बॉर्डर पे मैं गांव में घूम रहा था, कुछ नहीं दिखा, लेकिन एक चीज जरूर दिखा, पशुपालन का एम्बुलेंस। और अचानक अभी हाल ही में मैं बरौनी की तरफ बड़ी रफ्तार में जा रहा था, तो मैंने देखा वहां सामने कोई एम्बुलेंस जा रही है बत्ती जला के। तो मुझे लगा कोई पेशेंट जा रहा होगा पटना से इलाज करते हुए, तो रुक के फिर मैंने टर्न करके मैंने देखा, मुझे बड़ा अच्छा लगा कि वो पशुपालन का एम्बुलेंस था जो अकेले जा रहा था। तो क्या मैजेस्टिक एम्बुलेंस था। तो ये पशुपालन विभाग में जो रीच हुई है किसानों तक की, ये काबिल तारीफ है। आपके इंफ्रास्ट्रक्चर में जो परिवर्तन हुए हैं, और मैन पावर में बहुत से नए नए डॉक्टर्स इस डिपार्टमेंट आए हैं। बहुत सारे डॉक्टर्स मुझसे मिलते हैं कि सर डायनेमिक एसीपी कर दिया जाए, डायनेमिक एसीपी कर दिया। मेरी तो कोशिश है, मैंने कहा फाइनेंस डिपार्टमेंट में कि भाई इसकी समीक्षा करें, लेकिन मैं एक सुझाव आपको दूंगा, फाइनेंस डिपार्टमेंट जो समीक्षा करे, लेकिन अगला पे कमीशन में आप लोग जरूर अपना पक्ष जरूर रखेंगे। मतलब 2026 में नया, अब तो 2016 के बाद 2000 हर 10 साल में होता ही है, तो नेक्स्ट पे कमीशन में ये बात जरूर रखिएगा कि भाई आपके जो सर्विस कंडीशंस हैं, मैं चाहूंगा कि मेरी अपनी व्यक्तिगत इच्छा है, नॉट एज विकास आयोग, कि आपके सर्विस कंडीशंस सामान्य डॉक्टर्स के अनुरूप ही हों, बट ये फाइनेंस जो पे कमीशन है उसमें जरूर रखिएगा। फाइनेंस डिपार्टमेंट समीक्षा कर रहा है, बट आप अगला पे कमीशन में इसमें चूकिएगा। पिछले पे कमीशन में आप लोग चूक गए, 2016 में अगर आप इसी पे कमीशन के समक्ष अपना पक्ष रखते तो जरूर उसी दिन से 2016 से आपका हो जाता। बट ठीक है, देर मतलब आप कोशिश करिए, और मेरी अपनी उम्मीद है और मेरी अपनी आशा है कि आपको जो भी सुविधा हो एक ह्यूमन डॉक्टर के अनुरूप हो, ये मेरी अपनी इच्छा है। आज बहुत सारे इश्यूज पर मेरी बातें हुई, डॉक्टर एन विजयलक्ष्मी ने बहुत सारे बिंदुओं पर कहा है, और मैं फिर उस सभी जितने भी डॉक्टर्स हैं इस डिपार्टमेंट के रिवाइवल और ग्रोथ स्टोरीज हुई है, और इसका जो कहते हैं डिपार्टमेंट का पुनर्जन्म हो गया है सभी आपके मैडम के नेतृत्व में और हमारे डॉक्टर्स के बड़ी कड़ी मेहनत से। मैं इसके लिए आपको बधाई देता हूँ, और मैं आशा करता हूँ कि आप लोग इस जो हमारे किसान हैं, गरीब किसान हैं, जहाँ एक और उनके स्वास्थ्य के बारे में स्वास्थ्य डॉक्टर्स करते हैं, एक अकेला मुख्य लाइवलीहुड जो सेक्टर है, सबसे गरीब से गरीब, बकरी पालते हैं, मुर्गी पालते हैं, गाय पालते हैं, जो उनका लाइवलीहुड चलता है, इस लाइवलीहुड सेक्टर में जो आपका कंट्रीब्यूशन है वो अतुल्य है, उसका कोई कंपैरिजन नहीं। और इस भावना के साथ और इस कठिन परिश्रम के साथ मैं आशा करता हूं कि यह विभाग नए ऊंचाइयां और नए परचम छुएगा, और इसी मेरी आशा और मेरे विश्वास के साथ मैं आज सभी को इस कार्यक्रम में इनवाइट करने के लिए धन्यवाद देता हूं, और पुनः वर्ल्ड रेबीज डे के अवसर पर मैं सबको अपनी शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय। Thank you, sir, for the wonderful hope you have given us to the whole veterinary fraternity. And I sincerely appreciate the words you have shared with us. On this occasion, मैं सर के व्यक्तित्व के लिए 4 पंक्तियां पढ़ना चाहूंगी, और अगर ये पंक्ति हमारे ऑडियंस को सर के अनुकूल लगे तो वो तालियों से इसे कंफर्म करेंगे। कैसे अपने जुनून से पहचान बनाई जाती है, कैसे अपने जुनून से पहचान बनाई जाती है, कर्तव्य पथ पर चलते हुए विशाल बनाई जाती है। राहें चाहे कितनी भी कठिन हो, राहें चाहे कितनी भी कठिन हो,
कैसे उन्हें आसान बनाई जाती हैं। Thank you. Now moving forward to our technical session, which promises to be both informative and engaging. Okay. Now I would like to call Dr. Randhir sir, Director IHP, for vote of thanks. Sir, please. आज वर्ल्ड रेबीज डे के अवसर पर मैं डॉक्टर रणधीर कुमार, IHP डायरेक्टर, सर्वप्रथम हमारे चीफ गेस्ट सिद्धार्थ सर जो हमारे डेवलपमेंट कमिश्नर हैं, उनका धन्यवाद ज्ञापन करते हैं, उनका आभार व्यक्त करते हैं कि इस मौके पर वो उपस्थित होकर हम लोगों को गौरवान्वित किए हैं। हमारी ACS मैम डॉक्टर N विजयालक्ष्मी, जिनके निर्देशन में, जिनके कार्यकाल में विभाग इतनी ऊंचाइयों को छुआ है, उनका आभार व्यक्त करते हैं। हमारे निदेशक साहब श्री उज्जवल कुमार सिंह अभी नए नए आए हैं, लेकिन सर से कोऑर्डिनेशन बना के विभाग निरंतर आगे बढ़ते जा रहा है, इनका आभार व्यक्त करते हैं। हमारे सम्मानित मेरे फ्रेंड, मेरे गेस्ट, मेरे RD साहब, जॉइंट डायरेक्टर साहब, सभी लोग दूर से आए हैं, बाहर से हमारे वेटनेरियन आए हैं, सभी का धन्यवाद ज्ञापन करते हैं। हमारे वेटनेरियन कई जिलों से आए हैं, बहुत दूर से आए हैं, उनका उपस्थिति पूरा ऊर्जावान लगता है, क्योंकि वो काफ़ी यंग हैं, उनका भी धन्यवाद ज्ञापन करते हैं। अब अगला सेशन शायद टेक्निकल सेशन होगा, जिसमें आप लोग रहेंगे। धन्यवाद। सारा